Yes. So in this chapter, development, we have read about the meaning of development. Development means a better situation in life, a better position in life, to have more growth, to have more prosperous and fruitful life. Better word is fruitful life, which we enjoy. So that type of progress and growth, when it takes place in our life, then we are saying that we can say that development is taking place. Now, instead of talking about an individual, we have to expand our horizon. We have to talk in terms of the countries. Now, what is needed by the countries to make development? Variety of things are required, which we have discussed yesterday. So then we have told that variety of goals can be there. People may have same goals. People may have different goals also. So when people have different goals, then we say that people are having conflicting goals, या contradictory goals, या opposite goals to each other. What is beneficial for one person may not be beneficial for the other person. ठीक है, यहाँ तक हमने किया था. Then we have talked about this one other thing, national development. Different people, they have a mixture of goals. They not only want good income from their profession, along with income they want good quality of life also. They want respect, dignity of labor, equal treatment. Such kind of things are equally needed in life. Then we came to this page, how to compare different countries. And then I gave you one example of students with different skills. Some are good in music, some are good in painting, some are good in studies. So we cannot compare students having different skills. Then what can be done? Students can be compared when we take same type of students in one group. As I said, music, good in music, they can be compared. Those who are good in studies, they can be compared. Those who are good in athletics, they can be compared. मतलब same kind of basis is required to make comparisons. Okay. Now avoid this personal example. Now we have to talk in terms of countries. क्योंकि हमारा जो concept है study का वो country के साथ related है. So now how can we compare the countries? Now you see, एक simple सा general idea which can come to the mind of any person, that is कि we can compare the income of the countries. अब income of the country का मतलब है general words में अगर हमने देखना हो तो हम क्या कह देते हैं, income of all people. तो how can income of all people be calculated? जैसे for example in your class right now मान लो 20 students are there, मान लीजिए, ठीक है. तो अब आपकी किसी बच्चे की इनकम है 10 रुपीज, किसी बच्चे की इनकम है 20 रुपीज, एनी अदर स्टूडेंट may have 30 rupees, some student may not be having any income, zero. Just a minute. Good morning sir, right now sir, I am having class sir, I call you later. हाँ जी, हाँ जी, okay. So different students may be having different money income. So simply what can we do? We can just add the income of all the children. 10 plus 20 कर दे, plus 30 कर दें, plus जिसकी जो जो income है, किसी की 5, किसी की 200, किसी जो भी है, whatever amount. If we just simply add the income of all the people in the country, अभी मान लो 20 लोगों का हमने country बोल दिया, 20 students का, तो सबकी income को add कर दें. For example, total comes out to be 500, मान लो, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? What can we say? कि भाई national income of this country is 500 rupees. कौन सा country? जिस कंट्री में हाउ मेनी पीपल आर लिविंग? 20 पीपल एज पर अवर एग्जांपल. ठीक, अब 20 तो बहुत कम लोग हैं, 20 लोग तो नहीं होते हैं इन द कंट्री, करोर्स ऑफ पीपल आर देयर. तो देन व्हाट कैन बी डन? वी कैन जस्ट सिंपली ऐड इनकम्स ऑफ ऑल द पीपल. अब वो जितनी भी इनकम बने वो हो जाएगी, दैट कैन बी नोन एज अवर नेशनल इनकम. दिस इज अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया टू असेस. ठीक, नाउ क्वेश्चन मे कम टू द माइंड ऑफ मेनी ऑफ यू कि some countries are very large countries and some countries are very small countries. जैसे हम कंपेयर करें इंडिया और श्रीलंका, इंडिया भूटान, ठीक है, भूटान और अमेरिका. Now see the size difference in size, not only physical size of area, geographical size तो है ही है, but there is lot of difference in the population also. In some countries population is very less, Bhutan की population is very less, नेपाल की population is very less, but उसके comparatively इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी हाई, अमेरिका की पॉपुलेशन इज आल्सो हाई एज कंपेयर टू भूटान या श्रीलंका, उनके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब फिर हमें कैसे पता चले कि जिस कंट्री में कम लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली देयर टोटल इनकम, नेशनल इनकम विल आल्सो बी लेस, एंड द कंट्री इन विच मोर पीपल आर लिविंग
more population is there, so obviously their total income, national income will be more. So then again problem is arising, we cannot compare the countries because the countries vary with regard to population. There is difference in the size of population of different countries. जिस country में ज़्यादा लोग होंगे obviously they will be earning something, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो earn करते ही होंगे, तो उनकी income ज़्यादा ही होगी. और जो छोटा country है जिसमें less people are living, वो भी चाहे जितना ज़्यादा भी कमा लें तो भी total अगर जब करेंगे तो that will be less, that income will be less because number of people is less in that country. So now what can be done to solve this problem? ठीक है, now you make use of your pencil and on your book wherever you find the space, ऊपर या साइड पे जहाँ भी आपको लगे, write one formula. In order to avoid this problem, then another method is applied that is called per capita income, PER. ठीक है, per capita income, capita CAPITA आगे income. तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं P कैपिटल लेटर्स में PCI. PCI stands for per capita income. So I am going to tell the formula. You please write down. Per capita income is equal to national income of the country divided by total population of the country. National income of the country divided by total population of the country. Okay. Now by applying this method, this formula, we can calculate the average income. 8th या 9th क्लास में you would have studied about arithmetic mean, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में. तो उसमें क्या करते हैं, that is just average, that is also called average. तो एवरेज हम इनकम निकाल सकते हैं. जैसे अभी आई गेव एग्जांपल कि 20 स्टूडेंट्स का अगर कंट्री है, आप 20 बच्चे हो और आपकी टोटल इनकम बनी है 500, सबकी इनकम को ऐड कर दें. तो एज पर दिस पर कैपिटा इनकम मेथड नाउ कैलकुलेट कितनी बनेगी, टोटल इनकम नेशनल इनकम कितनी है 500 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20. तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 से डिवाइड करो 25. तो इसका मतलब एवरेज इनकम कितनी आ गई, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम. प्लीज राइट, दोनों का मतलब सेम है. पर कैपिटा इनकम ही को ही बोल देते हैं एवरेज इनकम. ठीक है जी, नोट करना है, याद करना है आपने, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम वन एंड द सेम. तो अब वी आर गेटिंग एज पर दिस मेथड वी आर गेटिंग पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू 25 रुपीज. अच्छा, अब ये तो ठीक है, हम एक रफली एक हमने आइडिया निकाल लिया. But that does not mean कि all students, all 20 students will be having 25 rupees income. ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि as in the example I said, some students may be having income of 10 rupees, some may be having income of 15 rupees, 20 rupees, किसी की 0 income, किसी की 200 income, different incomes can be there. तो इसका मतलब हो गया कि जो ये per capita income और average income formula है, it is not giving us exact value. It is just giving us a simply middle value, हम कह सकते हैं average value दे रहा है, एक mean value दे रहा है, but it does not mean कि all people will be having same income. किसी की income 25 से more भी हो सकती है, some people may be having income less than 25 rupees, but still it is a better method because it helps us to compare. Now we can compare Nepal with India, या Sri Lanka या Bhutan with India, या India can be compared with America. किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ प्लीज कम टू लास्ट पैरा. नाउ दोज हु डोंट हैव, दे कैन मेक यूज ऑफ दैट पीडीएफ, यू कैन टेक आउट फ्रॉम योर क्लास बुक. जिनकी ओल्ड बुक है वहां से देख सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैरा. नाउ अब क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स. जो वर्ल्ड बैंक है, इफ यू रिमेंबर 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड. तो उसी यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही एक बनाया गया था वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो वो जो वर्ल्ड बैंक है, इट कीप्स ऑन प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग डिफरेंट कंट्रीज. तो वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नाउ व्हाट हैव दे फाउंड या व्हाट क्राइटेरिया दे हैव गिवन, दे हैव मेड यूज ऑफ दिस per capita income criteria. I repeat, World Bank has used the criteria of average income or per capita income to compare the countries. ठीक, अच्छा, अब कैसे पता चले, ये तो एक सिंपली इन वन लाइन वी आर सेइंग दिस. तो नाउ दे हैव गिवन सम न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो. अब नाउ क्योंकि अमेरिका राइट नाउ प्रेजेंटली, यूएसए या उसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्मली शॉर्टली हम बोल देते हैं अमेरिका. तो अमेरिका को एक सेंट्रल पॉइंट लिया है, अमेरिकन डॉलर्स में वैल्यू हैज बीन टोल्ड.
क्योंकि अमेरिकन डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, सब कंट्रीज में उनको यूज किया जाता है। हैप्पीली ऑल द कंट्रीज दे एक्सेप्ट दैट वैल्यू ऑफ डॉलर, तो इस करके उसको साथ में रखा गया। नाउ यू कैन नोट डाउन, यू कैन सी इन योर बुक अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। डॉलर क्या है, वहाँ की करेंसी है। एज इन अवर कंट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर करेंसी? इंडियन रूपी, रुपया बोलते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपये, 100 रुपये ऐसे, तो वहां पर अमेरिका में है डॉलर। तो यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर, अगर किसी कंट्री में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, but next time late comers will not be allowed to enter. Be careful next time. Every time there is interruption because of this, because it disrupts the flow of lecture. So be careful. So American dollar, how many? 12,056 US dollars per annum. Annum मतलब 1 year का, annual word से बना annum. Per annum 1 year में अगर वहाँ अमेरिका के जो यूएस डॉलर्स हैं 12,056 यूएस डॉलर्स हैं, अगर किसी कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम और मोर देन दैट 12,056 या उससे ज्यादा, तो वो कंट्री कहलाएगी पर कैपिटा इनकम, तो देन दैट कंट्री विल बी नोन एज ए रिच कंट्री। आई रिपीट, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्या कहा गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इफ एनी कंट्री per capita income या average income is 12,056 dollars US dollars per annum or more than this, then that country will be known as a rich country. On the other side, अगर किसी अब जरूरी तो नहीं ना all countries are not rich, तो other criteria is also given कि अब now secondly they have said world development report में कि if any country is having income US dollars में 955, I repeat 900, ये आपने लर्न करना है, 955 US dollars or less than this, so then those countries will be known as poor countries. Hope it is clear. फिर से याद कर ले, very easy to learn. 12,056 or more than that, अगर per capita income है तो country will be known as a rich country. If per capita income is 955 US dollars per annum or less than this, then country will be known as a poor country. ठीक, तो नाउ हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कैटेगरीज। कौन टॉक कर रहा है, कौन बता रहा है इसके बारे में? वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, दैट इज टेल। नाउ मेनी कंट्रीज दे लाई इन बिटवीन दीज टू, तो ऐसे भी तो कंट्रीज कैन बी देयर whose income is less than 12,056 but more than 955, quite possible. तो अब उन कंट्रीज को क्या बोल दिया जाता है? मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज। अब वो इसमें क्या आ जाता है? इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया कम्स इन दैट कैटेगरी। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, व्हाट इज दैट? इट इज रिटन हियर, आई एम हैविंग ओल्ड बुक, तो ये पुराना एडिशन है, बट आई हैव सेंट यू द लेटेस्ट पीडीएफ आल्सो, ठीक है। तो दैट इज 1820 यूएस डॉलर। तो नाउ 1820 is more than 955 but quite less than this 12,056, उससे तो बहुत ही कम है। तो that is why India is categorized as a low middle income country. मिडिल में तो है, बट मिडिल में होने के बाद भी लो वाली साइड पे है ना, 955 वाली साइड पे ही है, 1820 को बहुत ज्यादा नहीं है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक। So this criteria, who has given this? This we have to learn. This criteria of average income or per capita income, it has been given by World Bank. याद रखना है, World Bank has given this criteria of per capita income or average income. Later on in the exercise, we have to do one question related to this. So let us recall, per capita income or average income method has been, या criteria has been given by World Bank. ठीक? Now I am coming to next page. It is not very much clear, but you can see from your book. Now see, one example has been given here, average income. Okay, now you have to make use of your mind. See, one example is given here. So let us try to solve this question. See, one table is given. ये वाला table दिया हुआ है. And what is written? Comparison of two countries. Now you see the extreme left side. Two countries, their names are A country, B country. एंड फॉर एग्जाम्पल वहां पे किसी कंट्री में, दोनों कंट्रीज में ओनली 5 पीपल आर लिविंग। इमेजिन किया है, सच में नहीं होता ऐसे, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इमेजिनरी एग्जाम्पल है। तो 5 पीपल आर लिविंग देयर इन कंट्री ए एज वेल एज बी, ठीक है। नाउ यू सी फ्रॉम योर टेबल, कंट्री 1 में, कंट्री ए में फर्स्ट जो पर्सन है, हिज इनकम इज 9500 रुपीज, सेकेंड की 10,500 रुपीज,
थर्ड की 98 एंड सो ऑन, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इनकम। सेम वे कंट्री बी की इनकम दी हुई है। अब आप निकालिए, लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड आउट एवरेज इनकम। ठीक, तो एवरेज इनकम, एवरेज वर्ड मीन्स पर कैपिटा इनकम। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। Which formula? Total income, total national income divided by population. So that means you can write, you can see total income कितनी बनेगी, total national income. You add all the values, 9500 plus 10,500 plus 9800 plus 10,000 plus 10,200. सबको add कर दो and then divided by population कितनी है of country A, 5 people divided by 5. Just calculate the value quickly. Later on I ask you. ठीक है, जो भी वैल्यू आई दैट यू कैन राइट इन दिस ब्लैंक जो बॉक्स दिया हुआ है। सेम वे फॉर कंट्री बी। नाउ हियर टोटल नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? फर्स्टली वी हैव टू ऐड 500 प्लस 500 अगेन, फिर दो बार 500, फिर 48,000, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन इज अगेन हियर 5 पीपल, 5 से डिवाइड करें तो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग? कैन एनीवन ऑफ यू टेल? You can unmute yourself and tell. What is the value you are getting for country A and B? Hurry up, bete. Avoid wastage of time. Quickly, you can tell anyone. Nobody is interested to speak. Very bad. Country A 10,000. 10,000. And country B? 10,000. Yes, country B also 10,000. That's very good. Very nice. So both the countries, for both the countries, average income we are getting 10,000. Okay. But now if we pay attention only to this value of 10,000, then तो we can say कि both countries are at the same level. एक जैसे ही हैं, सबकी दोनों की बराबर ही है income. But it is not like that. Now we have to compare. Now you see the individual income. Individual देखो, country A में what is the minimum income? That is 9,500. And maximum income country A में ही that is 10,200. ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों की इनकम में? 9,500 और 10,200 में हार्डली 7 और कितना हो गया ये, तकरीबन 700 के आसपास, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, ऑलमोस्ट 700 का डिफरेंस है। ऑन दी अदर साइड कंट्री बी में व्हाट इज द मिनिमम इनकम? दैट इज 500 और मैक्सिमम इनकम कितनी है? 48,000। इसका मतलब दोनों लोगों की इनकम के बीच में, एक जिसकी इनकम है 500 और एक जिसकी इनकम है 48,000, दोनों की इनकम में व्हाट इज द डिफरेंस? 47,500, विच इज क्वाइट अ बिग डिफरेंस। 47,500 का डिफरेंस होना, इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, वेरी लार्ज डिफरेंस इज देयर। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्री बी में देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की इनकम बहुत कम है, फर्क ज्यादा है ना। बट कंट्री ए में सिंस डिफरेंस बिटवीन द इनकम, लोएस्ट इनकम एंड हाईएस्ट इनकम दैट इज वेरी लेस, तो देन वी कैन कंक्लूड कि देयर आर लेस इनकम इनइक्वालिटीज इन कंट्री ए। एम आई क्लियर? कंट्री ए में इनकम की इनइक्वालिटीज, आपस का जो गैप है रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच में, दैट इज लेस। तो जिस कंट्री में ये गैप लेस होता है दैट इज ए गुड कंट्री, and the country in which there is this gap is very wide between the low income and high income person, that country is a not a very good country, because वहाँ पर inequalities of income are very high. पुअर लोग बेचारे बहुत पुअर है और रिच लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, तो सोसाइटी में inequalities of income take place. तो उन inequalities के करके वो कंट्री को बढ़िया कंट्री नहीं कहा जाएगा, that will not be called as a very good country. ठीक? So to be a very good country, socially, there should be least possible difference between the high income and low income. I hope it is clear. Okay? All this has been explained in this para which is given here. Now, one cartoon is given there. You can see, देखो क्या हुआ है, 4 chairs के ऊपर 5 persons are sitting. ठीक? और जो दूसरा साइड है, राइट साइड पिक्चर है, उसमें ये वाली पिक्चर में what is there? 4 chairs पे on one side 1 person is enjoying. एंड बाकी के जो पर्सन्स हैं व्हाट आर दे डूइंग? ये वाले, दे आर 4 पीपल आर सिटिंग ऑन 2 चेयर्स। दिस इज जस्ट ए सिंबॉलिक कार्टून, सच में नहीं है कि ऐसे है। इसका मतलब है ये क्या दिखा रहा है? दिस कार्टून, दिस डायग्राम, दिस इज शोइंग द इनकम इनइक्वालिटीज,
यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ इनकम मिल रही है। यहाँ पर एक आदमी की इनकम ज्यादा है और बाकी की इनकम कम है। तो ऐसे जो ये कार्टून बनाए होते हैं ना, वो सिंबॉलिकली दे वांट टू टेल अस समथिंग, दे वांट टू जस्ट raise some question in our mind ki what is the meaning of this. So after this you are requested to read these questions. After the chapter we will discuss these. Okay, now come to next page. Yes, again this is old book, but side by side I have written the new values also, ये वाला table. Now one more table is given, income and other criteria. कि अभी तो on the last page we have discussed only about income, per capita income ज़्यादा है तो very nice, less है तो it's bad situation. But other than income, other things are also responsible for development of any country. Now which are those other things? For that we need to study this table. ठीक है, now in this table, ये ओल्ड बुक है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू बुक टेबल. ठीक, तो उसमें क्या हुआ है, ऑन वन साइड स्टेट्स हैव बीन गिवन, ऑन दिस साइड देयर पर कैपिटा इनकम दैट हैज बीन गिवन. तो स्टेट्स में जो नाम दिए हुए हैं दैट इज हरियाणा, केरला एंड बिहार. बेटे डोंट पे अटेंशन टू दिस, आई एम हैविंग वेरी ओल्ड एडिशन, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाट इज देयर इन दिस पार्ट इन द न्यू बुक्स. तो हरियाणा, केरला एंड बिहार. और जो इनकम है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम फॉर 2015 एंड 16, जो फाइनेंशियल ईयर है, आपको पता है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर इन अवर कंट्री. ठीक, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर. तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर ईयर, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो वो 2015 की एंड 16 की वैल्यूज है. तो व्हाट इज गिवन, हरियाणा में इनकम है पर कैपिटा इनकम 1,62,000 समथिंग, केरला में इनकम इज 1,40,190 एंड बिहार में लीस्ट इनकम पर कैपिटा इनकम 31,454. नाउ लेट अस ट्राई टू कंपेयर which state is having maximum per capita income. Obviously हरियाणा, सबसे ज्यादा इनकम है वहां पे. Which state is having least possible income, least per capita income, that is obviously Bihar. Kerala lies in between the two. ठीक, तो if we pay attention only to per capita income criteria, मनी इनकम को ही देखें, तो उस एंगल से we should say कि भी जो हरियाणा है that is the richest state, बिहार is the poorest state out of these three. बाकियों को नहीं लेना, सिर्फ only these three are being compared, and Kerala lies in the middle. Numerically तो this explanation can be given, but now this is not sufficient. Let us see what other things are there. Now if we compare, ये new table आप देखिए जरा, again same 3 states are given, then 3 columns have been made. First column है infant mortality rate, ये वाला, and this infant mortality rate data is based on 2016 की values, 2016 की values. यहाँ पर है literacy rate, that data is based on 2011 year, और यहाँ पर last दिया हुआ है net attendance ratio, ये data based है 2013-14 के ऊपर. ठीक, अब हमने ध्यान से देखो, firstly I am trying to tell you the meaning of these 3 terms. After that we compare the table, compare the states. Now what is the meaning of this infant mortality rate? Below this these numerical values meaning is given, you can tick mark, 1 mark के लिए it is very important. तो infant mortality rate होता है the number of infants, infant होता है बहुत छोटे babies जो होते हैं, number of infants या children who die before completing the age of 1 year. अभी बेचारों का फर्स्ट हैप्पी बर्थडे भी नहीं हुआ सेलिब्रेट, 1 ईयर की एज होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो दोज दैट रेट दैट इज कैलकुलेटेड पर 1 लाख पीपल, कि 1 लाख लोगों के पीछे, अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो उसके पीछे कितने जो इन्फेंट्स जिनका बर्थ हुआ है 1 ईयर पूरा नहीं हुआ, हाउ मेनी ऑफ दोज इन्फेंट्स दे डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर. तो इट इज कैलकुलेटेड पर लाख. ठीक, ऑन द अदर साइड जो ये दिया हुआ है ना लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मीनिंग होता है कि this number of proportion of literate population in the 7 and above age group, कि जिनकी एज 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर्स है, वो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने उनको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना अपने गुजारे लायक उनको काम आता है. इसका मतलब ये नहीं कि वेरी हाईली क्वालिफाइड, बहुत प्रोफिशिएंट हो, स्कॉलर हो, ऐसा कुछ नहीं. They should be just able to write their name or to read something, कि अपना काम चला सकें, बस इतना लिखना पढ़ना उनको आ जाए. ठीक है,
तो ये कैलकुलेट किया जाता है पर 100 कि अगर 100 लोग हैं 7 ईयर या उससे ज्यादा एज के, तो उसमें से कितने लोगों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। ठीक है। एंड थर्ड इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो यह हुआ है कि जो एज ग्रुप होता है 14 टू 15, जैसे अभी आप यू आर इन दिस एज ग्रुप 14-15 के अराउंड ही हो सारे बच्चे तकरीबन, तो 14 टू 15 एज ग्रुप के बच्चे, कितने बच्चे इस एज ग्रुप के स्कूल अटेंड करते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज चिल्ड्रन हु कम इन द एज ग्रुप ऑफ 14-15, हाउ मेनी ऑफ देम आर अटेंडिंग स्कूल, this number to be divided by total children in this age group. For example, let me tell you, just a minute, one student is coming right now. Yes, मान लीजिए 14 to 15 एज ग्रुप के बच्चे हमारे कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल 100, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि ऑल दोज 100 पीपल स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन दे वुड बी गोइंग टू स्कूल, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मान लो उन 100 बच्चों में से 14-15 एज ग्रुप के बच्चों में से मान लीजिए ओनली 40 चिल्ड्रन दे आर अटेंडिंग स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर एजुकेशन, तो फिर ये नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 100। भी टोटल बच्चे कितने हैं इस ग्रुप में, उनमें से कितने जाते हैं स्कूल, कौन सा एज ग्रुप 14 टू 15 का, तो यहाँ पर कितना हो गया एज पर दिस एग्जांपल 40%। तो ऐसे ही पूरे कंट्री के लिए, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल बताया, ऐसे ही पूरे कंट्री के लिए, ठीक। तो वो कहलाती है नेट अटेंडेंस रेशियो। नाउ लेट अस सी, नाउ दीज थ्री स्टेट्स हैव टू बी आर टू बी कंपेयर्ड विद रिगार्ड टू दीज थ्री टर्म्स। तो व्हाट डू वी सी, हरियाणा में है जो इन्फेंट IMR, इट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म IMR। ऐसे ही ये जो होता है ना नेट अटेंडेंस रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रीविएशन में इट इज शोन एज या रिटन एज NAR, कैपिटल लेटर, दैट मींस नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हरियाणा में जो है दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33, केरला में 10, बिहार में 38। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हरियाणा, दैट इज वेरी हाई, मतलब सेकंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। And which state is having highest mortality rate, infant mortality rate? बिहार। मतलब बिहार में सबसे बुरी सिचुएशन है, हरियाणा में उससे थोड़ी कम बुरी है, 33 है, थोड़ा ही कम है। एंड केरला इज द बेस्ट स्टेट, वहां पे सबसे कम बच्चों की डेथ होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। इसका मतलब वहां पर 1 ईयर की एज कंप्लीट करने वाले जो बच्चों का नंबर है दैट इज क्वाइट गुड, सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। तो इस रिगार्ड से इफ वी ऑब्जर्व तो केरला इज द बेस्ट स्टेट। बट अगर हम सिर्फ इफ वी पे अटेंशन ओनली टू मनी इनकम तो केरला इज एट सेकंड प्लेस। बट इफ वी पे अटेंशन टू IMR तो फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट केरला इज एट नंबर 1, फर्स्ट प्लेस के ऊपर है। नाउ सेम वे वी हैव टू कंपेयर लिटरेसी रेट। हरियाणा में लिटरेसी रेट इज 82%, केरला में 94, बिहार में इट इज 62। तो विच इज द हाईली लिटरेट स्टेट विद 94%? अगर 100 लोग हैं वहां पे तो उनमें से 94 आर लिटरेट, तो दैट मींस दैट शोज केरला इज एट फर्स्ट प्लेस। सबसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा जो है दे आर इन केरला, फॉलोड बाय हरियाणा। तो अगेन हरियाणा इज एट सेकंड प्लेस एंड बिहार बेचारा वो अभी भी थर्ड नंबर के ऊपर ही है। वहां पर इनकम भी कम थी, वहां पे IMR भी सबसे ज्यादा है और ये जो है लिटरेसी रेट वो भी सबसे कम है। पुअरेस्ट सिचुएशन है बिहार की। नाउ कमिंग टू नेट अटेंडेंस रेशियो, हरियाणा में इट इज 61, केरला में 83, बिहार में 43। तो इसका मतलब अगेन केरला इज स्टैंडिंग फर्स्ट, इट इज कमिंग आउट टू बी एट फर्स्ट प्लेस बिकॉज 14-15 एज ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे दे आर गोइंग टू स्कूल इन केरला। तो दैट मीन्स केरला इज फर्स्ट इन दिस रिगार्ड, followed by Haryana and then followed by Bihar. Now you see very carefully why I am saying all these values, just to make you realize that if we pay attention only to money income, then results can be different. There can be different conclusions. Haryana first hai. But if we pay attention to along with income, if we pay attention to other aspects of life, कौन-कौन से aspects, एक literacy से related, ये भी लिटरेसी रेट से रिलेटेड है, एक ये नेट अटेंडेंस रेशियो से रिलेटेड है, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी से रिलेटेड, ऐसे ये कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। हियर इन दिस चैप्टर इन दिस बुक यहाँ पे ओनली दीज 3 आर बीइंग कंपेयर्ड, बट अदरवाइज इन योर हायर क्लासेस यू विल सी देयर आर वेरियस क्राइटेरिया with regard to which we can compare
We can compare any state, we can compare any we can say cities or towns or countries, किसी भी को भी compare कर सकते हैं. जैसे ये लिखा है ना हरियाणा, केरला, बिहार की जगह पे हम ये भी compare कर सकते हैं. जैसे अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, कोई और cities, मोगा, तरन तारण, बठिंडा, चंडीगढ़, कोई cities को भी compare कर सकते हैं. Provided हमारे पास उनसे related data होना चाहिए, we can compare. ठीक है. So means in addition to income, these are the other factors which help us to understand कि which state is overall going toward a better state. कहाँ पर सिर्फ मनी से ही सब कुछ नहीं है, बाकी की चीजें भी. अब देखो किसी के पास मनी तो वो आदमी बिल्कुल अनपढ़ गवार, तो उसका भी क्या फायदा है जिसको कोई सेंस ही नहीं है ना. कोई आदमी के पास बहुत पैसे हैं बट वो एवरग्रीन बीमार ही रहता है, उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती है. तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ ए वाइड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can be helpful to compare the countries or to compare the states. ठीक है जी. I hope it is clear. Now let us come to next page. Now see here in the first para the same thing has been told. जो भी मैंने explain किया सारा टेबल की explanation वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है in these two paras, right? Now let us come here public facilities. Now public facilities क्या होता है? Public facilities in 8th class you have read those facilities, those amenities, civic amenities which are generally provided by the government of the country. सिविक अमेनिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी चीजें जो आमतौर पे विच आर नीडेड बाय ऑल पीपल. वी ऑल वांट गुड रोड्स, पक्का रोड सबको चाहिए. ठीक है. वी ऑल नीड प्योर वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. वी ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी. वी ऑल नीड स्ट्रीट लाइट्स. वी ऑल नीड ट्रैफिक फ्री एनवायरनमेंट. सबको ये चाहिए ना सारी चीजें. तो इनमें से जो चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है लोगों को, या वाटर प्रोवाइड कर सकती है, या रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर सकती है, ऐसा कोई भी काम विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट keeping in view the welfare of maximum possible population of the country. So those things they come in the category of these public facilities. And government का what is the, ऐसा नहीं है कि these things cannot be provided by private sector people. जो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, मुकेश अंबानी है या टाटाज हैं या कोई और हैं, वो नहीं बना सकते, वो भी बना सकते हैं. बट आपको याद होगा इन 8th क्लास वी हैव रेड कि व्हाई गवर्नमेंट अंडरटेक्स दिस इनिशिएटिव, because if everything is left to private sector people they will charge very high price. अगर तो टाटा कंपनी ने या रिलायंस कंपनी ही रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम करे तो हमें तो सड़क पे चलने के भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना. तो वो चार्ज करेंगे, उन्होंने अपने पास से खर्च किया तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे प्राइस. कुछ भी फ्री तो नहीं आएगा. तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट टेक्स द इनिशिएटिव. इनिशिएटिव होता है जिम्मेदारी लेना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स कम अंडर दिस पब्लिक फैसिलिटी. ठीक है. अच्छा, अब है कि इसका सारे का मीनिंग क्या है कि वी मे बी हैविंग मनी, वी मे बी हैविंग वेरी गुड इनकम विद अस, बहुत मनी हो सकता है, बट वी कैन नॉट बाय ऑल अदर थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दैट मनी. लाइक यू कैन सी इन दिस पैरा हियर इन द मिडल, यू कैन अंडरलाइन आल्सो, बीच में करके दिया हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. पैसे होने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीजें वी कैन नॉट परचेज. अब वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? आफ्टर 2-3 लाइंस few examples are given, please underline them also. Your money cannot buy you a pollution free environment, है ना. आपके पास you can have money, but how can you when you go out of your home, तो how can you stop this pollution? आपके बस में नहीं है, you can't stop that. ट्रैफिक इतना रोड्स के ऊपर है, they all the vehicles they emit a lot of smoke that gets mixed in the air. You cannot stop that. आप जितने भी रिच हो आप उसको रोक नहीं सकते हैं. देन और क्या है, और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन. अब आपके पास जितना मर्जी मनी हो बट यू कैन नॉट बी श्योर कि वट एवर मेडिसिन यू आर परचेजिंग फ्रॉम द डॉक्टर और फ्रॉम द केमिस्ट शॉप कि वो एक प्योर मेडिसिन है, उसमें मिलावट नहीं है. एडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना, टू एड समथिंग, सम कंटेमिनेशन टू बी एडेड, और अनएडल्टरेटेड होता है शुद्ध किसी चीज का प्योर होना. तो जो मेडिसिन वी आर परचेजिंग दैट इज प्योर और नॉट, वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज ऑल आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट को भी पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी तभी जाके पता चलेगा. ठीक है. तो मनी होने के बाद भी वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ दिस. सेम वे हियर ओनली 2 एग्जांपल्स आर गिवन. वी कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम आवर होम. आप कुछ एडिबल आइटम्स यू परचेज, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल लेके आते हो,
या कुछ भी खाने पीने का कोई पैकेट कोई लेके आते हो, जैसे रिफाइंड ऑयल है या आप घी लेके आते हो मार्केट से, शुगर लेके आते हो, स्पाइसेस लाते हो जो